برکت جلالی نام میں اپنے ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جے مسیح کی کہتا ہوں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ خداوند کا کلام، اس کے کلام کو، اس کے منہ کے الفاظ کو آپ کے تک پہنچا سکیں، شیئر کر سکیں۔ اور میں ڈاکٹر پیٹر کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں ان کے وسیلہ سے خداوند کا کلام آج آپ کے تک پورا 1 گھنٹہ پہنچے گا اور خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ میں اور دوسری کلیسیاؤں میں کیا فرق ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں مختلف سمجھتے ہیں یا آپ کی بات کیوں مختلف ہوتی ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ قرآن کے کلام میں لکھا ہے، پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پور نہ پھوٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے عزیزوں کہ ہم خداوند کا کلام جوں کا تو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پیش کرتے ہیں، اور جس طرح یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7ویں میں لکھے، نہ اس سے بائیں مڑے نہ دائیں مڑتے ہیں، ہم وہی بات کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس طرح خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح اس کلام میں لکھا ہوا ہے، جس طرح کہ کس طرح بپتسمہ لینا ہے، یسوع نام کا بپتسمہ لینا ہے، اگر عشاء بانی ہے، عشاء کا مطلب شام کی روٹی شام کو توڑنی ہے، پیر دھونے کا، یہ خداوند نے ایک پیٹرن دیا ہے، ہم اس کے عین مطابق چلتے ہیں۔ آپ یہ بات سن کر اپنے دلوں کو یہ شک نہ کریں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات پہ یقین کریں کہ جب میں نے اس بات کو سنا اور میں بھی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یار ہمیں شروع سے ایسا کبھی نہیں بتایا گیا، لیکن جب میں نے خداوند کے کلام کو پڑھا، اس کی حقیقت کو جانا، اور مجھے یہ بات خدا نے میرے پر آشکارا کی، یہ بات بتایا کہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ خداوند وہی چاہتا ہے جو شروع میں تھا، پہلا بپتسمہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور آخری بپتسمہ بھی ایسا ہونا چاہیے، جیسے پہلے روٹی توڑی جاتی تھی اب بھی ویسے توڑنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ میں آپ کو کے سامنے خدا کے خادم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بردر نعیم بھٹی، وہ خداوند کا کلام پیش کریں گے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک حوالہ پڑھے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ کو یاد ہو کہ چند ہفتے پہلے بھائی کلیسیاؤں کے بارے میں کہ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے قرآن کے کلام میں، مکاشفہ میں، اور ابھی ہم پہلی کلیسیا پہ بات کریں گے، اور بھائی نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے، لیکن میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کے کلام میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکولیوں کے کام سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ بھائی نہیں، آپ ہمیں بتائیں
کہ اس حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ افسس کی کلیسیا سے یہ خدا ان کا جو فرشتہ بات کر رہا ہے یہ فرشتے کے بارے میں اور ان ساری باتوں کے بارے میں بیان کریں گے. خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا کہ پھر سے میں اسی بات کے تسلسل کو جاری رکھ سکوں, اسی سلسلے کو تسلسل کے ساتھ بیان کر سکوں جو لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پر شیئر کیا تھا. اور اچھا ہے کہ جس جگہ سے آپ کا سلسلہ منقطع ہو وہیں سے اس کو جوڑا جائے. تو یہ ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گیپ آنے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ سلسلہ ایسے وہ ٹوٹتا ہے کہ بات سمجھ نہیں لگتی. اس کے لیے میں خداوند یسوع مسیح کے بعد جو کریڈٹ ہے وہ بھائی ڈاکٹر پیٹر صاحب کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ وہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پر سٹڈیز دے رہے ہیں تو 15 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے. سو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے شکر گزار کرتا ہوں خداوند کے آگے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ 15 منٹ کی بجائے ہم اس ٹاپک کو جو بہت ہی زیادہ وسیع ہے اس پر بات کر سکیں, اور انہوں نے موقع دیا کہ ہم پورا گھنٹہ آج پروگرام کریں. سو خداوند بھائی آپ کو, آپ کی فیملی کو بہت زیادہ بلیس کرے اور آنے والے وقت میں خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرے. سو چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں پہلی کلیسیا کے تعلق سے, اور یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب سے ہے, لیکن میں اس سے پیشتر کہ اس بات کو شروع کروں, اس میسج کو شروع کروں, اور بڑے تحمل کے ساتھ, کیونکہ ٹائم آج زیادہ ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ جب میں اگر ان باتوں کو آپ کے سامنے واضح کروں, اس سے پیشتر میں ایک بات آپ سے کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ لاسٹ پروگرام پہ میں اور بھائی عرفان جب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی ہم نے میسج کو ختم کیا اور ہم اٹھ کر باہر گئے تو کسی بھائی نے ایک ہی میسج 3 نمبروں پر سینڈ کیا مجھے, بھائی عرفان کو, اور ہمارے سینئر پاسٹر نوبل گل کو. اور وہ میسج یہ تھا جو کہ ٹاپک تھا غزہ کی وار, اور جب اس ٹاپک پہ بات چل رہی تھی تو اس بھائی نے یہ ٹیکسٹ میسج کیا کہ اگر خداوند ساری دنیا کو پیار کرتا ہے, اگر خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ غزہ میں بہت سارے بے گناہ شخص مارے جا رہے ہیں اور بہت سارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. میں نے سوچا کہ ٹیکسٹ کا جواب ٹیکسٹ سے نہیں مناسب, تو میں نے ان کو فون ہی کر دیا, لیکن بھائی نے فون آگے سے کاٹ دیا. تو میں نے سوچا کہ چلو میرے پاس یہ ایک الیکٹرانک ایک میڈیا سورس ہے جس سے کہ میں نہ صرف یہ بات اس بھائی تک پہنچانا چاہتا ہوں, بلکہ جو کان میری یہ آواز سن رہا ہے میں یہ بات ان تک پہنچا دوں. خدا واقعی میں سب سے پیار کرتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا عادل اور منصف بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب نوح نے منادی کی کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے اور اس نے ایک بہت ہی ہیوج کشتی بنا لی اور اس نے لوگوں کو کہا کہ اس کشتی میں آ جائیں, لیکن جب لوگوں نے اس وقت کے پیغام کو نہیں سنا, سورہ 139 کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر داؤد یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا, تو بائبل کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا قالب تجھ سے چھپا نہیں تھا, جب میں زمین کے اسفل میں تو مجھے دیکھ رہا تھا, تو نے میرے بے ترتیب مادے کو ترتیب دیا ہے, اور وہ ایام جو میری کتاب میں پہلے سے لکھے جا چکے ہیں جبکہ وہ وجود میں بھی نہیں آئے تھے تو ان کے بارے میں جان رہا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے.
अजीज बहनों और भाइयों, मैं चाहूंगा कि भाई जफर एक हवाला पढ़ दें आपके सामने। वो रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 9वां बाब है। वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है 20, 21 और 22 आयत में। पौलुस का खत रोमियो के नाम और उसके 9वें बाब की 20वीं आयत से यूं लिखा हुआ है, कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लुंडे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपने गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादा से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए हैं नाहर तहम्मुल से पेश आया। मैं आमीन, खुदा आपको बरकत दे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सब चीजों के अलावा खुदावंद नहायत तहम्मुल से पेश आता है, जबकि खुदा ने तो ये पहले से ही सब चीजें तैयार कर दी हैं। अभी जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है सब खुदा के नॉलेज में है। और मैंने बात कही थी कि अपनी गवाही के ताल्लुक से मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये बाइबल मुकद्दस बाजार में से 5 या 4 या 6 पौंड की आम दुकानों से दस्तयाब है। एक बुक फाइल भी देते हैं भाई, क्या? और फ्री भी देते हैं। हाँ जी, फ्री भी। और बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी हैं या बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, चर्चेस हैं जो इस किताब को फ्री भी आपको देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी इस किताब को लेकर के मत्ती के बारे में, लूका के बारे में या पौलुस रसूल के बारे में जान सकता है। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि इनकी जिंदगी में खुदा ने क्या क्या किया, बल्कि लोग इस बात से इंटरेस्टेड हैं कि खुदा मेरी, भाई जफर और आपकी जिंदगी में किस तौर से अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मसीही नहीं था, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। और जब मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना और यीशु मसीह के बारे में सीखा तो मैंने उस पादरी से कहा कि पादरी साहब प्लीज काइंडली, क्या जिस यीशु की मनादी आप कर रहे हैं क्या ये मेरा यीशु बन सकता है? और ऐसा हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहना है और मुझे तौबा की दुआ का भी नहीं पता था। जैसे जैसे पादरी साहब ने दुआ की मैंने उनके पीछे दुआ की, लेकिन उन्होंने जो बात मुझसे की वो बड़ी खूबसूरत थी और वो ये थी कि अगर तू ईमान लाए कि यीशु मसीह ने तेरे लिए फिदिया दिया तो तू नजात पाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि इस गवाही का, इस सवाल का ताल्लुक आज के मैसेज के साथ भी है, इसलिए मैं अब बुक को जाया किए बगैर उस भाई को क्लियर कर दिया है कि भाई बाइबल मुकद्दस प्री डेस्टिनेशन की बात करती है और सब कुछ खुदा की तरफ से प्लान है। मत घबराएं, आपके लिए प्रिविलेज है कि खुदा ने अपनी कौम को छोड़ करके गैर कौम को छोड़ लिया है और अब उसने आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। इससे बढ़कर मेरे लिए और आपके लिए क्या बात है कि जब कोई हम उम्मत, कोई कौम और कोई कबीला ना थे तो भी खुदावंद ने हम पर फजल किया। और पौलुस इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि खुदा का फजल इस तौर से हम पर ज़ाहिर हुआ कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद के कलाम में से जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मैसेज को समझने के लिए कि जब खुदा बात करता है इफिसस की कलीसिया के साथ और हम यहां पर पढ़ते हैं कि मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। और मैं अगर जल्दी जल्दी से इनके नाम लूं तो बड़े आसानी के साथ इफिसस है, स्मुरना है, परगमन है, थवातीरा है, उसके बाद सरदीस है, फिलदिल्फिया है और लुदीकिया है। 7 कलीसियाएं हैं। लेकिन अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि इन कलीसियाओं से पहले भी एक कलीसिया
यरूशलेम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। तो क्या भाई जफर आप मुझे बताएंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ब्रदर, आप ठीक कह रहे हैं कि वहां पे एक कलीसिया थी जो सबसे पहली कलीसिया कहलाती है। और उसका सबूत ये है कि ईदे पेंतीकोस्त पर आमीन। 120 की जमात ऑलरेडी थी। और जैसे ही पतरस ने अपने पहले वाज में रूह में ममूर होकर कलाम किया और लोगों के दिलों पर चोट लगी, तो बाइबल कहती है कि तकरीबन 3000 लोग उसी वक्त उनमें शामिल हो गए। आमीन। और इसका एक वाज़ह सबूत अमाल की किताब उसके 12वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि जब हेरोदिस ने कलीसिया के ऊपर हाथ डाला और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया, तो वहां पर वर्ड जो लिखा हुआ है कि कलीसिया, इसका मतलब है कि मैसेज जो मुकाशवा की किताब में है वो 7 कलीसियाओं के नाम हैं, लेकिन जिस कलीसिया का जिक्र हम अमाल की किताब में देखते हैं वो इन 7 कलीसियाओं में हमें कहीं नजर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे अजीज बहन भाइयों और दुनिया के तमाम रहने वाले लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कोई उम्मत, कोई कौम और कोई कबीला ना थे, खुदावंद ने मुझ पर और आप पर यीशु मसीह के खून के वसीला से रहम कर दिया है और मुझे और आपको अपने ले पालक बेटे और बेटियां बना दिया है। और इससे बढ़कर आने वाले वक्त में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि खुदा हमें अपनी दुल्हन बना रहा है और उसने हमें अपनी दुल्हन के तौर पर, तैयारी के तौर पर रखा है, ताकि हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा दुल्हा आने वाला है और हमने उसके लिए तैयारी करनी है। अजीज बहन और भाई, यहाँ पर जब हम इफिसस की कलीसिया के बारे में देखते हैं कि इससे पहले जो कलीसिया थी वो यहूदियों की कलीसिया थी, लेकिन जब खुदा ने पौलुस रसूल के साथ कलाम किया कि मैंने तुझे गैर कौमों में अपना चुना हुआ वसीला मुकर्रर किया है, तो इसका मतलब है कि इस कलीसिया का जो फरिश्ता है, इस कलीसिया का जो सितारा है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो गैर कौमों का रसूल जिसे बाइबल मुकद्दस प्रूफ करती है, वो कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल है। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि वो ये बात करता है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। अब इस बात को ध्यान में रखें कि जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो कलीसिया के लिए है, लेकिन कलीसिया को ये पैगाम दिया नहीं गया बल्कि कलीसिया के फरिश्ता को ये पैगाम दिया गया है। गौर करने वाली बात है, कलीसिया को ये मैसेज नहीं दिया गया। मैसेज किसके पास है? उसके फरिश्ता के पास है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैसेज क्या है, तो फिर आपको उस कलीसिया के फरिश्ता से राब्ता करने पड़ेगा। और उस कलीसिया का फरिश्ता जो पौलुस है, वो उसकी जो वाज़े टीचिंग है, और मैं कभी भी इस छोटे से पैसेज को पौलुस रसूल के खत से अलग नहीं करता, क्योंकि जो टीचिंग पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में दे दी हैं, वो सब टीचिंग्स हैं जो हमें यहां पर नजर आती हैं। और जब वो कहता है कि मैं तेरे काम को, तेरी मुशक्कत को, तेरे सब्र को जानता हूं, और जो रसूल अपने आप को कहते हैं और है नहीं है, और तू मेरे नाम से मुसीबत भी उठा रहा है, मेरे नाम से सब कुछ कर रहा है। और आगे चल के हमें पता चलता है कि वो ये भी कहता है कि तू नकलियों के काम से भी नफरत करता है। इसका मतलब है कि जो फराइज हैं वो सब कुछ वो पूरे कर रहा है, वो कलीसिया पूरे कर रही है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद उससे एक शिकायत करता है। और जब मैं कभी इस बात को पढ़ता हूं तो मैं बड़ा ही हैरान होता हूं कि एक कलीसिया ऐसी है जो खुदावंद का काम भी कर रही है और मुशक्कत भी कर रही है, बर्दाश्त भी कर रही है, सब्र भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद को उनसे शिकायत है। और जो शिकायत है वो उसकी नौयत ही डिफरेंट है। वो कहता है कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अजीज बहनों और भाइयों, मैं
बड़ा सादा सा खुदा का खादम हूँ, और मैं जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी मिसालें दे देकर कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को समझाऊं या सिखाऊं और उनको बताऊं कि ये चीजें जो हैं वो हमारी रियल लाइफ में किस तौर से हमारे साथ इन सब चीजों की अक्कासी करती हैं। मैं एक सादी सी बात करूं तो वो ये है कि शादी के 1-2 साल के बाद ही वो बीवी का जो रवैया है वो ये होना शुरू हो जाता है कि जानी अब आप वो वाले नहीं रहे, आप बदल गए हैं, अभी आप मुझसे वो वाली मोहब्बत नहीं करते जो मुझसे करते थे। हस्बैंड को गिला होता है कि तुम अब वो नहीं रही, अब तुम थक जाती हो, अब तुम क्या करती हो, अब तुम्हारा जो ध्यान है वो मेरी बजाय बच्चों की तरफ रहता है, घर के काम काज में रहता है, वो मोहब्बत नहीं रही पहले वाली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मैं आपको इफ्सियों के खत के ताल्लुक से चंद एक बुनियादी बातें ना बता दूं, आपको ये बात समझ नहीं आएगी। अजीज बहन और भाई, मैं मिसाल के साथ आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस बात की तरफ जाएं, हम इफ्सियों की किताब खोलकर देखें और मैं उसकी चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तौर से मेरा और आपका प्यारा खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है। अजीज बहन और भाइयों, यहां पर जो इफ्सस की कलीसिया की बुनियादी तालीम है और जो खास बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि वो इस खत के पहले बात नहीं, मुझसे और आपसे एक ऐसी बात करता है, और वो वही बात करता है जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि बाइबल प्री डेस्टिनेशन की बात करती है। मैं ऐसे खुदा को मानता ही नहीं हूं कि जिसके नॉलेज में सब कुछ ना हो। खुदा वही है जो आलमे कुल है, खुदा वही है जो सब कुछ जानता है, खुदा वही है जो आपको, मुझे और हमारे खानदानों को जानता है, खुदा वही है जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो जो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ कंसर्न है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उसके। अजीज बहन और भाइयों, वो बात करता है पहले बाप में, उसकी पहले बाप की 4थी आयत में लिखा हुआ है कि बनाए आलम से पेशतर उसने चुन लिया, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। ये वही बात जो मैंने पहले की थी, प्री डेस्टिनेशन की। अजीज बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा मुझसे, आपसे, हर एक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और बाइबल जिस तरह से कहती है कि उसका हर एक सुखन पाक है। मैं गवाही के साथ बात करना चाहता हूं कि मैं जब इस कंट्री में आज से 7 साल पहले आया तो अभी मेरा वीजा नहीं लगा था, जब खुदा ने मुझसे बात की और उसने मुझसे कहा कि मैंने तेरे लिए कौमों के, उम्मतों के और कबीलों के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे लिए इंग्लैंड में खुदावंद तूने दरवाजे खोले हैं, कौमों में, उम्मतों में और कबीलों में, तो ये कैसे पॉसिबल होएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये इस वक्त के मनाजर है, ये इस टाइम है, ये वो टाइम है जो आप मुझे देख रहे हैं, ये वो टाइम है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे ममालिक में व्यापक कर रहा हूं। ये खुदा का वो सुकून है जो पाक है, जो कभी टलता नहीं है, और जो वो कह देता है उसकी बात कभी टलती नहीं है। अजीज बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो अपने लोगों के बारे में ये बात करता है कि आप उसके प्लान में हैं, तो ये मेरे लिए और आपके लिए नहायत प्रिविलेज की बात है। हम वाल्थमस्टो में रहते हैं, हम नॉटिंग हिल में रहते हैं, हम स्कॉटलैंड में हैं, या हम वेल्स में रहते हैं, या हम हेज में हैं, हम साउथ हाल में रहते हैं, हम जहां कहीं भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, खुदा मुझसे और आपसे ना सिर्फ मोहब्बत करता है, बल्कि मैं और आप उसके प्लान में हैं। फिर वो आगे चलकर बात करता है
کہ نہ صرف ایسا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ جو سب کچھ مل گیا ہے دوسرے باپ میں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ خدا کا پلان ہے. اور خدا کے پلان کی بات جب وہ یہاں پر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسرے باپ کی 8ویں آیت میں, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. عزیز بہن بھائیوں, فضل کے تعلق سے بہت دفعہ میں نے بات کی ہے آپ سے کہ خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم سے لے کر کے بلکہ اس سے پہلے کا جو دور ہے, آدم سے لے کر ابراہیم تک کا دور ہے, وہ بغیر شریعت کا دور ہے, اور ابراہیم سے لے کر یسوع مسیح تک جو دور ہے وہ شریعت والا دور ہے, اور اس کے بعد یسوع مسیح سے لے کر اب تک جو دور ہے وہ فضل کا دور ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں اور بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں پر آپ کی گہری نظر ہے اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنی پیشن گوئیوں کو پورا کر رہا ہے, تو ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں وہ دانیل کا 69واں ہفتہ ہے, بلکہ 69ویں ہفتے اور 70ویں ہفتے کے درمیانی کا جو عرصہ ہے جسے ہم فضل کا دور کہتے ہیں اس میں سے گزر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ایک ایسا خوبصورت وقت ہے جو جس سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. میں چرچ میں بات کر رہا تھا کہ بائبل مقدس جو ہماری کتاب ہے, اس کی جتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہر ایک کتاب یسوع مسیح کی بات کرتی ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کتاب جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتی ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو وہ یسوع مسیح کو جس طور سے انٹروڈیوس کرواتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح عورت کی نسل ہے. اگر ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں تو وہ ہمیں یسوع مسیح کو فصح کا بھرا دکھاتی ہے, احبار اسے سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے, اور گنتی کی کتاب اس کو صبح کو بادل اور رات کو آگ کا ستون ظاہر کرتی ہے. استثنا اس کو آنے والا نبی کہتا ہے, اور یشوع اس کو فوجوں کا سردار کہتا ہے. قاضی اس کو, جو قضاء کی کتاب ہے وہ اس کو قاضی کہتی ہے, اور جو روح کی کتاب ہے وہ اسے کرامتی کہتی ہے. میں کرامتی کے تعلق سے جو بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے, میں واپس اپنے مضمون پر آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت فضل کے دور کو ہم ضائع نہ کر دیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کرامتی ہے, کرامتی کا جو ترجمہ ہے وہ رشتہ دار ہے, اور ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں جو رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے وہ سادے لفظ میں ہوتا ہے لپیٹنے والا. جی یہ میرا رشتہ دار ہے تو یہ ہر اس بات میں شامل ہے جو میرے پاس ہے, اور رشتہ دار اکثر لینے کی بات کرتے ہیں, دینے کی بہت کم بات کرتے ہیں. لیکن عبرانی زبان میں جو لفظی مطلب قرابتی کا ہے, رشتہ دار کا ہے, عزیز بہن اور بھائیوں, وہ ہے چھڑانے والا, وہ ہے چھڑانے والا. اور بائبل مقدس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح قرابتی ہے, اور وہ اپنے رشتہ داروں کو چھڑانے کے لیے ابھی سے ہی ان سب باتوں کو تیار کر رہا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے غزہ میں دیکھ رہے ہیں. عزیز بہن اور بھائیوں, وہ وقت آنے والا ہے کہ جب وہ اپنے تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں تو میں آپ کو شارٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کرامتی ہے, اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کرامتی بن کر اپنے بھائیوں کی طرف رجوع کرے, اپنے بھائیوں کی طرف جائے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ٹائم کو ضائع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم دوبارہ آپ آئیں گے بھائی, وہیں سے شروع کریں گے. ابھی ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. پولس رسول خط غلطیوں کے نام اس کے 30ویں باب کو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے بابرکت لوگ ہیں. اسرائیل جو خدا کی قوم ہے, لیکن ہم مجھ سے بھی بڑھ کر ہیں کہ اس کا یہ فضل اور اس کا یہ پیار ہے, اور یہ اس کا ایک محبت ہے کہ وہ ہمیں اس نے لکھا کہ ابراہیم کی نسل ہو, کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے. جو مسیح میں ہے, جو مسیح کے ساتھ ہے, اگر آپ غلطیوں اس کا 3واں باب اس کی 16ویں 17ویں اور آخری آیتیں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے بس تم ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے, اور یہ نہیں کہا گیا کہ نسلوں سے, جیسے بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے,
बल्कि जैसा कि एक के वास्ते कि वो तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। अगर हम मसीह की नस्ल में से हैं, अगर हम मसीह को मानते हैं, उसे जानते हैं और उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं और उसको अपना निजात देना मानते हैं, तो ब्रदर और सिस्टर, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम, वो जो हमारा करावती है, उसने हमें इब्राहिम की नस्ल बना दिया। और अगर उसकी उसी बात की आखिर में पढ़े तो लिखा हुआ है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हुए। हालेलुया। कैसी बड़ी बात है ब्रदर जी कि खुदावन के हम, अगर वो हमारा प्यार करने वाला और हमें उसने छुड़ा लिया, तो हमें उसने इतना बड़ा अजर दे दिया कि हम इब्राहिम की भी नस्ल कहलाए रूहानी तौर पर, और उसके बाद वारिस भी बन गया। कितनी बड़ी बात, मुझे बड़ी बरकत मिलती है इस बातों से जब जानते हैं। और खासतौर पे हमारे खुदावन ने ऐसे हमें खालिम दिए हैं, बरकत खालिम दी हैं, जिनके वसीला से हमें ये मुकाशवे और ये उनकी बातें, खुदा का रूह हमें समझाता रहता है वक्तन। मैं दोबारा टॉपिक की तरफ आऊंगा। भाई से मेरा 2-3 सवाल, एक ही सवाल है जिसमें 2-3 बातें हैं, मैं चाहता हूं कि वो भाई हमको बयान करें। और वो ये सवाल है भाई मेरा आपसे कि अगर हमने जिस तरह हवाला मुकाशवा उसका दूसरे बाप की दूसरा पढ़ा, उसकी 4th आयत में लिखा है कि ये शिकायत है। वो क्या शिकायत है? वो पहली सी मोहब्बत के बारे में लिखा हुआ है कि वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। और शिकायत क्या है उससे? मोहब्बत कौन सी पहली थी, और वो किस बारे में तौबा करता है, वो कैसे पता चले वो कहां से गिरा है। और आखिरी बात कि चिरागदान को, वो किस चिरागदान की बात कर रहा है कि उससे हटा दूंगा। भाई नहीं, हाँ जी, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने फिर से हमें मौका दिया, हम उसी बात को वहाँ से जारी रखें जहाँ से हमने ख़त्म की थी सिलसिले को। मैं इस बात के बारे में जो भाई ने सवाल के अंदर जो सवाल हैं जो किए हैं, उनके ताल्लुक से जो बात करूँगा कि वो शिकायत क्या है, पहली सी मोहब्बत क्या है, और फिर ये कि कहाँ से गिरा है। सो मैं इन बातों की तरफ आऊँगा, लेकिन जब तक कि मैं इफिसस की कलीसिया की जो बुनियादी टीचिंग थी, जो बुनियादी बातें जो खुदावंद के खादम पौलुस ने उस चट्टान के ऊपर नींव रखी है, मैं जब तक आपको ना बताऊं वो बातें क्लियर नहीं होंगी। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की ऐसी प्यारी, खूबसूरत और बहुत किताब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अजीज बहनों और भाइयों, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो इफिसस के खत को पढ़ करके जो बात बताना चाह रहा हूं कि जिस तौर से ये जिंदगी के हर एक पहलू में मेरी और आपकी रहनुमाई करती है और हमें गाइड करती है, जिस तौर से उसने हमें बुनियादी तौर पर पहले ही बाप में ये बात सिखा दी है कि मैं और आप खुदा के फॉर नॉलेज में थे, और मैं और आप जो हैं उनको फजल के वसीला से निजात मिली है। और आगे वो ये कहता है कि मेरी बुनियाद वो कोई ऐरे गहरे की तालीम पर नहीं, बल्कि अगर आप पढ़कर देखें दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तमीर किए गए हो। मैं ये अक्सर बात करता हूं कि फांसी की कहावत है कि अगर आप बुनियादी पहली ईंट टेढ़ी रख देंगे तो वो दीवार अगर आसमान तक बन जाएगी तो वो टेढ़ी ही रहेगी। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस यीशु मसीह के ऊपर, जिस चट्टान के ऊपर रसूलों ने नींव रखी है और उसे आगे बढ़ाया है, मुझे और आपको उस ही टीचिंग्स के ऊपर चलना है, क्योंकि उन ही टीचिंग्स के ऊपर चल करके मैं और आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो खुदावंद मुझे और आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है और देना चाहता है। और फिर ये बातें हमें ऐसे समझ नहीं आएंगी, बल्कि वो ये कहता है तीसरे बाब में चल के कि अभी आपने तजर्बे से मालूम करना है कि जो यीशु मसीह है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है।
अभी मुझे और आपको एफर्ट करनी है, मुझे और आपको सीखना है, मुझे और आपको उसमें बढ़ना है। और वो कहता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, तुम उसको उसके लायक चाल चलो। इसका मतलब है कि हमें उस ही पैटर्न पर जिससे कि हम कॉल किए गए हैं, हमें उस पर चलना है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम खिदमत करो, फल लेकर आओ, और लिखा है कि तुम्हारा फल कायम रहे। अजीज बहनों और भाइयों, मैं जल्दी से चाहता हूं कि मैं इफिसस की इस खूबसूरत बुनियादी बातों को आप तक पहुंचाऊं, ताकि मैं उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट्स को भाई ने रेस किया है और उस ही बुनियादी मैसेज के ऊपर आऊं जो मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आगे चलकर चौथे बाब में जब ये खिदमतों के ताल्लुक से बात करता है कि उसने मुझे और आपको खिदमत के लिए बुलाया है, उसने हमें 5 तरह की डिफरेंट खिदमतें दी हैं, और वो कहता है कि उसने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर, बास को चरवाहा और बास को उस्ताद बनाकर भेजा है। और फिर उसके बाद वो बात करता है 5वें बाब में कि हमें खुदा की मानंद बनना है, हमें खुदा की मानंद बनना है, और हमें मोहब्बत से चलना है, और जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की है हमने भी दूसरों के साथ मोहब्बत करनी है। और जिस तौर से यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे वास्ते खुशबू की मानंद खुदावंद की हजूरी में नजर करके कुर्बान कर दिया है, मुझे और आपको भी वैसा ही करना है। उसी नक्शे कदम पर मुझे और आपको चलना है। क्यों आज इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी वायलेंस की बात नहीं करती? क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसी बुनियादी तौर पर जो बुनियाद है जो क्रिश्चियनिटी की, वो मोहब्बत है, और वो मोहब्बत की बात करती है। और आज देख लें कि बाइबल ही ये तालीम देती है कि अगर कोई तुम्हारे दाहिनी तरफ मारे तो तुम बाईं तरफ भी उसकी तरफ कर दो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं वो हमेशा प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और कभी भी वायलेंट नहीं होते, बर्दाश्त की बात करते हैं, सब्र करने की बात करते हैं। और ये वो बातें हैं जो मुकाशवा की किताब में वो कहता है कि तू करता है, बर्दाश्त भी करता है, मुशक्कत भी करता है, मेहनत भी करता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे तुझसे शिकायत है। दूसरी बात, तूने वो मुझसे पहली सी मोहब्बत नहीं रखी, और तीसरी बात कि तू याद करके कहां से गिरा है। और अजीज बहन भाइयों, मैं खत के ताल्लुक से जो आखिरी बात है वो मैं करना चाहता हूं कि वो ये बात करता है पौलुस रसूल इफिसस की किताब में कि हम एक स्पिरिचुअल रैलम में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द एक स्पिरिचुअल रैलम है, और हमारी जो लड़ाई है वो हाकिमों के साथ, इख्तियार वालों के साथ नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो आसमानी मुकामों में है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ऑपोजिशन के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो हमारे इर्द गिर्द काम करती हैं। अजीज भाइयों, इस बात को बिल्कुल लाइट ना लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी और आपकी जिंदगी में ये एक रूहानी दुनिया है जो हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन इसका वजूद है, और बाइबल हमें ये कहती है कि ये मौजूद है, और इसके लिए वो हमको कहता है कि हमने तैयारी करनी है। हमने सच्चाई से कमर कस करके, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुन्नत की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और ईमान की सिपर लगाकर, और इन सब के साथ खौद और रूह की तलवार को लेकर के उसका मुकाबला करना है। मैंने जो बात कही थी कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हर एक पहलू में ना सिर्फ मेरी और आपकी रहनुमाई करती है, बल्कि ये औलाद के ताल्लुक से, पेरेंट्स के ताल्लुक से, नौकरों के ताल्लुक से, मालिकों के ताल्लुक से, बीवी और शोहर के ताल्लुक से भी बात करती है। मैं चंद दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, मुझसे मुझे एक छोटी सी बात बताई, जो कि यहाँ पर जिक्र है कि शोहरों के ताल्लुक से वो कहता है कि शोहरों को कहता है कि अपनी बीवियों से अपनी मानो मोहब्बत करो, और बीवियों को ये तलकीन करता है कि उनकी ऐसी
खिदमत करो और उनसे ऐसा डरो जैसे तुम खुदावन से डरती हो। इस कदर ये खूबसूरत मेयार है। और जब वो मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा था, वो कहता है कि क्या आप जानते हैं कि एक शादीशुदा मर्द में और एक गैर शादीशुदा मर्द में क्या फर्क है? तो दूसरे दोस्त ने उसको जवाब दिया कि फर्क कोई नहीं है, सिर्फ उसका ओहदा चेंज हो जाता है, और जब माँ से संभाला नहीं जाता तो वो बीवी के हवाले कर देती है। सो अजीज बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसे मर्द नहीं बनना है। अब मैं आपको उन बातों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जो भाई ने की हैं और जिनका ताल्लुक खुदावंद के कलाम में से है। मैं आपको एक बड़े भेद की बात बताना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस का खुदा भेदों को आश्करा करता है। वो लोगों पर, वो लिखा हुआ है आमोस की किताब में 3:7 में कि वो भेदों को खोलने वाला खुदा है। वो कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने खिदमत गुजार नबियों पर अपने भेदों को आश्करा न कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये खुदावंद के कलाम में से मैंने सीखी हैं और खुदावंद ने मुझसे कलाम किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने इसका मैसेज, इस बात को, इस कलीसिया के मैसेज को सीखना है, इसको जानना है, तो इसमें एक भेद की बात है, एक की वर्स है। और अक्सर हम देखा करते थे कि रियाजी के सवालों के जो जवाब थे ना, वो आखिरी पेज के ऊपर लिखा हुआ करते थे और बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट मारा करते थे। सो इस किताब को, इस मैसेज को समझने के लिए एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट पता है क्या है? वो ये कहता है खुदावंद के कलाम में से कि गौर कीजिएगा कि ये मैसेज क्या है। एक मैसेज है, एक शिकायत है, और उसके बाद एक रिवॉर्ड है। इंतबा भी है और इंतबा के बाद एक रिवॉर्ड है। अगर आप रिवॉर्ड को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बात कहां से कहां पर जा रही है। वो ये कहता है कि जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। अजीज बहनों और भाइयों, पहली सी मोहब्बत बागे अदन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली सी मोहब्बत क्या है। पहली सी मोहब्बत वो है जो खालिस है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। वो कलाम है जिसमें कोई आमेजिश नहीं है, और वो आपको पैदाइश की किताब में नजर आएगी। अजीज बहनों और भाइयों, यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम के साथ रफाकत रखा करता था, और ये वो उसकी पहली मोहब्बत थी जो आदम के साथ थी। और जैसे ही खुदा के कलाम में आमेजिश आ गई, जैसे ही हवा ने ये कहा, बाइबल साफ कहती है कि जो बात हवा ने कोट की वो खुदा ने ऐसे नहीं कही थी। अगर मैं आपको पढ़कर दिखाऊं तो आपको दिखाऊंगा और आपको मालूम होगा कि कहां पर आमेजिश हुई है। खुदावंद के कलाम में ये बात ऐसे नहीं लिखी हुई है। खुदावंद के कलाम में जो बात लिखी है कि जब सांप उससे ये बात कहता है, खुदावंद ने आदम से ये बात कही थी कि तू बाग का हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब ये है कि हवा उस मैसेज को और शैतान उस मैसेज को, उस कलाम को किस तौर से अमेजिश करके आगे लेकर आता है, और वो उसे कहता है कि वाकई, तीसरे बाब की पहली आयत है कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम इस बाग के दरख्त का फल ना खाना। और आगे लिखा हुआ है कि औरत ने सांप से कहा कि हम खा सकते हैं, लेकिन उस फल की बाबत जो दरख्त बीच में लगा हुआ है, खुदा ने कहा है कि तू उसको ना खाना और ना उसको छूना। अजीज ब्रदर भाइयों, ये वो अमेजिश है जो खुदा के कलाम में की गई है शैतान की तरफ से, और ये वो बयान है जिसको के हला दिया गया है, जिसको के मिक्स कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो पहली मोहब्बत है जो वो तलाश करने के लिए आया, और जब
आदम और हवा गुनाह में गिर गए तो वो आता है अपनी को लेने के लिए, और जब उसको आवाज देता है और वो नहीं उसको पाता तो ये कहता है कि आए आदम तू कहाँ है। अजीज बहनों भाइयों, ये वो वक्त है कि वो अपनी पहली मोहब्बत को तलाश करने के लिए आता है, लेकिन वो उसको नहीं पाता। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आदम के पास ये इख्तियार था कि वो खुदा के कलाम पर कायम रहता, और उसके पास ये ऑप्शन थी कि वो हवा के साथ डिसएग्री करता, लेकिन उसने नहीं किया। बाइबल मुकद्दस दो आदमों के गिर्द घूमती है। एक पहला आदम है और एक पिछला आदम है। पहले आदम के पास ये ऑप्शन थी, लेकिन वो उस ऑप्शन पे कायम न रहा और उसने उस तालीम में अमेजिश खा करके उसने उस कलाम की नाफरमानी की और गिर गया और मर गया। लेकिन जो पिछला आदम है उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उस कलाम से नहीं हटा। शैतान ने उसको आजमाने के लिए 3 मरतबा उस पर कोशिश की, कलाम में अमेजिश की, और उसको अमेजिश के अलावा उसने उसको काउंटर क्वेश्चन किए, लेकिन वो उस पर कायम रहा, उसने एग्री नहीं किया, और वो अपनी उस पहली मोहब्बत पे जो बागी अदन में थी उसको नहीं मिली। ये उसकी पहली मोहब्बत है। अजीज बहनों भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि कभी आप गौर कीजिएगा कि आदम इब्राहिम, पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पढ़ के देखिए तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, तेरा जो इकलौता बेटा इसहाक है और जिससे तू प्यार करता है उसको मेरे पास ला और उसको कुर्बान कर दे। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कि वो उसकी आजमाइश का सबब क्या बना कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इसहाक प्रायोरिटी बन गया, और वो सब चीजों को पीछे छोड़ आया, और वो इसहाक उसके लिए सबसे प्यारा बन गया, और उसकी रफाकत, उसकी मोहब्बत खुदा के साथ वो खालिस नहीं रही जो पहले थी। बाइबल कहती है कि सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक खुदा है, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। लेकिन जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे से मोहब्बत करना शुरू कर दी, मेरे पास एक सवाल है कि क्या इसहाक उसका इकलौता बेटा था? ऐसा नहीं है, इब्राहिम के और भी बेटे थे, लेकिन इब्राहिम को अब सब कुछ अपना बेटा ही लगता था, प्यार भी है उसी के साथ, वो किसी को नहीं समझता था, सब कुछ उसका इकलौता बेटा ही था। लेकिन जब खुदा ने देखा कि इसकी पहली सी मोहब्बत मुझसे जाती रही, और अब ये उस कलाम पर नहीं खड़ा जो ये सिखाता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर, उसकी जिंदगी में आजमाइश आ गई। और उसके बाद जो ये शिकायत की है और ये जो पहली मोहब्बत की बात है, भाई कुछ क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद जब वो हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम कहां से गिरे हैं। मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी मुश्किल है। बहुत सारी कलीसियां हैं, मैं आपको दावे के साथ ये बात करता हूं कि ये जो पैसेज है वो कहता है कि सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमी है। वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही, वो मुझे तुझसे शिकायत है। और याद कर, अब याद की प्रॉब्लम ये है कि मैं पाकिस्तान में रहता, तो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा कलीसियाओं में जो रफाकत का एक बड़ा बहाना बना लिया जाता है, वो भाई जफर पता है क्या है? कलीसिया में लोगों को इस लालच के साथ बुला लिया जाता है कि भाई आप प्रेसिडेंट हैं, आप हमारी औहदे देना शुरू कर देते हैं, आप डीकन हैं, आप हमारे चर्च के एल्डर हैं, आप खजांची साहब हैं, आप चेयरमैन हैं। इस तरह के फजूल से कितने ज्यादा ओहदे आपको दे दिए जाते हैं। और ये वो तालीम नहीं है जो बाइबल की तालीम है, और ये वो अमेजिश है कि जिसका हमें पता भी नहीं चलता। हम समझते हैं कि हम तो खुदा का बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो खुदा की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जानता हूँ इंग्लैंड में कि वो चर्चिस के डीकन्स हैं, वो एल्डर हैं, और उनको बड़े बड़े ओहदे मिले हुए हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से खुदावन की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। मैं उन बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तमास करना चाहता हूँ कि कहां पर इन ओहदों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है? क्या ये खुदा की कलाम में अमेजिश नहीं है? क्या आपकी उसके साथ मोहब्बत में वफादारी नहीं है? क्या उस वफादारी में तब्दीली नहीं है? अजीज बहन भाइयों, ये वो बातें हैं
जिनसे हम हट गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा हमारी उस ऐसी हरतों की वजह से कि जब हम अपने पलोटे होने की उस कीमत को नाचीज जानते हैं और अपना हक एक दाल की खातिर बेच देते हैं, तो फिर हम उस जगह से हट जाते हैं जो जगह हमारे लिए तैयार होती है। और खुदावंद भी ऐसा करेगा जब हम उस कीमती चीज को, उस हक को नहीं पहचानेंगे और एक छोटे छोटे ओहदों की खातिर जो दाल के बराबर हैं जब हम दूसरों को दे देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस खूबसूरत तालीम को छोड़ करके इनके पीछे चले जाएंगे, तो फिर खुदा हमारे उस चरागदान को, हमारी उस पोजीशन को वहां से हटा देगा और हम उसके पास से दूर हो जाएंगे। खुदा ना करे ये मेरी और आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए। मैं भाई जफर से कहूंगा कि वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं वक्त बहुत कम रह गया, हम प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ और भाई का भी शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने उनके वसीला से हम तक ये बात पहुंचाई। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम मुख्तलिफ क्यों हैं, क्योंकि हम वही बात कहते हैं जो खुदा उनके कलाम में लिखी गई है। जिस तरह भाई ने बताया कि उस प्यार के बारे में, उस शिकायत के बारे में, कहाँ से गिरा है, गिरने की वजह क्या है। हम लोग अपने इंसान मैन मेड जो रसूमात हैं, जो उनके जो काम है, हमने अपनी कलीसियाओं में, अपने गिरजे घरों में और खुदा के कलाम में शामिल कर दी है, आमेज़िश कर दी है, जिसकी वजह से खुदावन जो है वो जिस तरह इस की कलीसिया से कहता है, आज वो हमसे, मुझसे और आपसे भी कलाम कर रहा है ये बात कि तुमने पहली से मोहब्बत छोड़ दी है, तुझसे शिकायत है, तू कहां से गिरा देख। क्योंकि उसने कहा कि अगर तू तौबा ना करेगा, अगर तू वापस नहीं फिरेगा उस कलाम की तरफ, उस पुराने रास्तों की तरफ, उस कदीम शराओं की तरफ जिसकी बाबत खुदावन ने हमसे बात की है, जिसके ऊपर उसके रसूल चले हैं, जिस तरह उसके रसूलों ने कलाम किया है, अगर हम उसके रसूलों की बात उस बुनियाद पर अपनी इमारत नहीं कायम करेंगे, लिखता आगे कि मैं तेरे चिराग, देखा लिखा हुआ क्या, अगर आप पढ़े थे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं तेरे, हाँ जी, चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके चिरागदान को हटा देगा। वो जानेगा नहीं कि मैं तुझे जानता नहीं, क्योंकि खुदा उनका कलाम दो धारी तलवार है। वो सीधा सीधा आपसे बयान करता है। वो कहता है कि मेरे मुताबिक, कलाम के ऐन मुताबिक चलना। मैं भाई का शुक्रगुजार हूँ इस बारे में कि उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बयान किया।